اپنے جسم کو آگ میں جلا کر راکھ کر لینا، لیکن غیر کے سامنے ماتھا نہ ٹیکنا، کسی غیر اللہ سے بھیک مت مانگنا، بیٹا بیٹی لینا ہو ایک اللہ سے فریاد کرنا، کسی غیر کے پاس مت جانا۔ ذرا غور کرو شرک کس کو کہتے ہیں، یعنی بوٹی بوٹی کروا لینا یہ تو منظور کر لینا، لیکن غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ آج ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں نمستے، اور ابھی ہم کچھ دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر گئے، سبھا تھی وہیں پر اس کے بغل میں پارلیمنٹ میں جانا ہوا، وہاں بڑے بڑے نیتا آئے ہوئے تھے، مسلمان نیتا بھی اٹل بہاری جی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں بیچارے، نمستے۔ مسلمان مولوی جن کے پاس ڈگری ہے، مولوی کی ڈگری، ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کے بھاگنے لگتا ہے۔ یہ نیتاؤں کا حال، تم ان کی بات کرتے ہو بیچاروں کی، ہائے ہائے، یہ تو اتنے بیچارے جاہل ہیں کہ پردھان منتری بننے کے بعد بھی اس کو یہ نہیں معلوم کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے کہ کھڑے ہو کے۔ جس کو یہ نہیں معلوم اس بیچارے کی عزت آج ہم کرتے ہیں، اس کی۔ اور بہت سے مسلمان تو ڈرنے لگتے ہیں یہ مولوی کہیں بال ٹھاکرے کے خلاف نہ بول دے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھبراؤ نہیں، جیل میں ہم جائیں گے، آپ نہیں جائیں گے۔ ہمارے نبی نے سب کو بے باک بنایا ہے، نڈر بنایا ہے، تم ان نیتاؤں سے ڈرنے کی بات کرتے ہو، اور ہمارے نبی نے تو کہا ہے کہ صرف ایک اللہ سے ڈرنا، اور جب تم اللہ سے ڈرنے جاتے ہیں، جس گاڑی میں بیٹھے ہیں اس میں بجلی لگی ہوئی ہے اوپر، دو گاڑی ان کے آگے چلتی ہیں ڈی ایم صاحب کے، دو گاڑی ان کے پیچھے چلتی ہیں، جس گاڑی میں ڈی ایم صاحب بیٹھے ہیں اس گاڑی میں بجلی دھک 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 کرتی ہے۔ دیکھا ہے آپ نے ایمبولینس گاڑی، بجلی اوپر دھک دھک کرتی ہے، ڈی ایم کا دل اندر سے دھک 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 کرتا ہے کہیں بم بسفوٹ نہ ہو جائے۔ یہ بیچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے، غیروں کی حفاظت کیا کرتے ہیں؟ اور ہماری حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے، اللہ نے لیے کہا نڈر رہو۔ تم ابھی یہاں کی بات کرتے ہو ولی صاحب حالات صحیح نہیں، اس پہ مت بولو، اور ہم نے تو کہا ہے کہ ہمیں تو دلی کے لال قلعے پر اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، ڈر کے نہیں لہرا پاؤ گے۔ اور بولو ہندوستان میں اسلام کی حکومت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی، اور جب آئے گی تو دلی کے لال قلعے پر محمد رسول اللہ کا پرچم لہرے گا یا نہیں لہرے گا؟ تو میرے بھائیو، ہمیں آپ کو تو اس دلی کے لال قلعے پہ پرچم لہرانا ہے، اٹل بہاری سے ڈر کر بال ٹھاکرے سے ڈرو گے تو پرچم نہیں لہرا پاؤ، پرچم نہیں لہرا پاؤ گے۔ آؤ میرے ہندو بھائیوں، تم جس کی پرتیچھا کر رہے ہو اس نبی کی پوتر شکشا میں تو آؤ، اس نبی کی شیتل چھایا میں تو آؤ، یہ اسلام ہی تمہارا دھرم ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ہندو دھرم کی 4 کتابیں ہیں جس کا نام ہے رگ وید، یجروید، اتھرو وید، سام وید۔ چلو ویدوں کو بھی چھوڑ دو، چاروں وید لے لو، منو اسمرتی بھی اٹھا لو، بھاگوت پران بھی اٹھا لو، کلکی پران بھی اٹھا لو، بھوشیہ پران بھی اٹھا لو، تلسی داس جی کی رام چرت مانس بھی اٹھا لو، والمیکی جی کی والمیکی رامائن بھی اٹھا لو، 18 پران بھی اٹھا لو، ہندو دھرم کی جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کتابیں اٹھا لو، جاؤ، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، اپنی ساری کتابوں میں ہندو شبد دکھلا دو، میں زندگی بھر تمہارے پیر دبانے کے لیے تیار ہوں۔ ہندو شبد ہی نہیں ملے گا۔ پتا چلا ہندو دھرم کا نام ہندو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ ہندو دھرم کا نام ہندو ہے ہی نہیں، ہندو شبد ہی نہیں ملے گا۔ پنڈت جی مہاراج سنسکرت کی کتابیں اٹھاؤ لاؤ، میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کوئی بھی ہندو دھرم کی کتاب ہو ہندو شبد دکھلا دے۔ ہندو دھرم کا نام ہے سناتن دھرم یا شاشوت دھرم۔ ہندو دھرم کا نام ہے سناتن دھرم یا شاشوت دھرم، اور سناتن کا معنی ہوتا ہے آسمان، سناتن کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ سے سچائی کی طرف بلانے والا دھرم۔ تو ہمیشہ سے سچائی کے راستے کی طرف بلانے والا مذہب اسلام ہے، ہم کہتے ہیں یہی سناتن دھرم ہے۔ اور شاشوت کے معنی ہوتے ہیں وہ کتاب جو آسمان سے اوپر سے زمین تک ایسی آئی ہو کہ جس کے اندر تبدیلی نہ ہو، چینجنگ نہ ہو، سرکشت بک، سرکشت کتاب، یعنی جس کے اندر گڑبڑی نہ ہوئی ہو، مولویوں نے اور پنڈتوں نے رشوت کھا کر گھوٹالا نہ کیا ہو، وہ کتاب۔ تو وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب ایک ہی ہے، اور وہ کتاب ہے قرآن۔
جو آسمان سے زمین تک بالکل حفاظت سے چلی آئی. تورات بدل گئی, زبور بدل گئی, انجیل بدل گئی, یہاں تک کہ رامائن بھی بدل گئی. والمیکی رامائن دیکھو اور رام چرت مانس دیکھو, دونوں کتابوں میں زمین و آسمان کا فرق تمہیں نظر آئے گا. وید بھی بدل گئے, ساری کتابیں بدل گئیں. اور اگر کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کا ایک نقطہ ایک زبر بھی نہیں بدلا گیا ہے تو وہ کتاب ہے قرآن کریم. اور اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی تھی, اے میرے پیارے نبی, تورات ہم نے اتاری ہے لیکن حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی ہے. انجیل ہم نے اتاری ہے, یہ بھی آسمانی, یہ بھی آکاشی پستک ہے, آسمانی گرنتھ ہے, لیکن ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری, اس کی رکشا کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی ہے. قرآن ہم نے اتارا ہے, یہ پرلے کے دن تک, قیامت کے دن تک, لاسٹ ڈے تک میں ہی اس کو نازل کرنے والا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. او دنیا والو, ہم ہی نے اس قرآن کو اوترت کیا ہے آکاش سے دھرتی پر, اور ہم ہی اس کی رکشا کریں گے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ کہتا ہے ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اور ہمارے ہندو بھائیوں, تو میں آج ایک ایسی بات بتاؤں جو شاید تمہارے پنڈتوں نے نہ بتائی ہو. رگ وید کے اندر لکھا ہے کہ چارم دھرم گوپی تھائے پروہ سے مرو درگنا گئی چتر براتر میں دیو کر شیام مرو درگنا گئی اشفما شگما روحا دیو دت مرو درگنا گئی تتستو شمبھل گرام سوت سواجیو جاتے مرو درگنا گئی. یہ مرودرگنا گئی, مرودرگنا گئی, مرودرگنا گئی جو آپ سن رہے ہیں, یہ رگ وید میں 31 بار آیا ہے. 31 ٹوائس, 31 بار آیا ہے. ذرا گنیے گا کتنے بار. 31, 31, 30 اور 1, 31 بار آیا ہے رگ وید کے اندر. اور آگے وید ویاس جی نے کیا لکھا ہے رگ وید میں, ہائے میرے ماننے والوں, آخری کتاب, انتم پستک جو انتم رشی لے کر آئے گا, اس رشی کی کتاب میں بھی ایک منتر 31 بار لکھا ہوا ہوگا. جب انتم مہارشی آخری نبی کی کتاب میں 31 بار کوئی منتر تمہیں لکھا ہوا مل جائے تو سمجھ لینا کہ یہی آخری دھرم ہے, یہی سچا دھرم ہے اور یہی سچا راستہ ہے. اب دیکھو 31 بار رگ وید میں مرودرگنا گئی آیا ہے. کیا قرآن میں بھی کوئی منتر, کوئی آیت 31 بار آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ جب ہم قرآن کھولتے ہیں, سورہ رحمان کھولتے ہیں, تو اس میں ایک آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور اس کو جب ہم ٹیلی کرتے ہیں, اس کو جب ہم اکاؤنٹ کرتے ہیں, اس کو جب ہم گنتے ہیں تو وہ بھی 31 بار. رگ وید میں بھی 31 بار یہ منتر, اور قرآن کے اندر بھی 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب رگ وید کا لکھنے والا کیا کہتا ہے کہ جب ایسا منتر جو 31 بار کتاب میں لکھا ہو تو سمجھ لینا کہ وہی آخری کتاب ہے. ہندو بھائیوں اب ایمان لے آؤ اس قرآن کے اوپر, کیونکہ یہی اب آخری کتاب ہے, یہی لاسٹ لا ہے, یہی انتم سمویدھان ہے, یہی آخری قانون ہے جو اٹل بہاری کے لیے بھی اور بال ٹھاکر کے لیے بھی ہے, یہ اس کے لیے بھی ہے, یہ پارلیمنٹ کے نیتاؤں کے لیے بھی ہے, یہ MBBS ڈاکٹروں کے لیے بھی ہے. جو مینوفیسٹو جناب محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے, دنیا کا کوئی نیتا وہ طریقہ پیش نہیں کر سکتا. کس کی بات کرتے ہو, ان کو ہم نیتا مانے ہیں. یہ بیچارے, ہائے کیا بتاؤں, ملائم سنگھ جی بیچارہ بقرعید پہ ہمارے یہاں آیا ہے, گائے وہ اس کا خصی بکرا ہوتا ہم لوگوں کے یہاں قربانی, تو بڑے شوق سے اس کا گوشت کھاتا ہے. تو ہم نے کہا منتری جی اچھا نہیں لگتا کہ آپ یہ کھاتے ہیں. تو کہنے لگا چپ رہو یار, ہمارے ہاں بڑے بڑے نیتا تو بھینس کا بھی کھا جاتے ہیں. تو ہم نے کہا کیوں یار, بولا ایک بات ہے یار, یہ سوادشٹ بہت ہوتا ہے. ملائم سنگھ جی, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بیٹھا ہوں, میرے بھائی جو ذرا غور کیجئے گا. ملائم سنگھ جی آتے تو ہم سے کیا کہتا ہے, مولوی صاحب پھر 4 کر دیجئے, ہمارا کچھ جیت جاؤں. آپ بولیں گے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی بات مانیں گے. ہم نے کہا ہاں, ہم تمہارے جیسے نیتاؤں کے ساتھ جا کر اپنی ویلو نہیں گرانا چاہتے, ویسے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کہہ کر بہانہ کر دیتا ہوں, جاتا بچارا چلا جاتا ہے, کرے کہ اٹاوا کا وہ بھی ہے, اٹاوا کا میں بھی ہوں. تو کبھی کبھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے. لیکن یہاں یہ دیکھیے آپ کہ مینوفیسٹو کیا ہے.
पार्लियामेंट में एक नेता बैठा है, उसका नाम है उबैदुल्ला खां आजमी, राज्यसभा का मेंबर है बेचारा। क्या कहता है, मौलवी की डिग्री है उसके पास, 2 बजे में आऊंगा, जनता दल का है, वीपी सिंह ने बनाया है, जनता दल का, 2 बजे पहुंचूंगा। और इन नेताओं की गाड़ी कब आती है मालूम है? 8 बजे। 2 बजे का वादा करते, पहुंचते कब है? 8 बजे। वादा खिलाफी, ये मौलवी होकर और नेता होकर वादा खिलाफी। और यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का अगर आप आइडियल देखेंगे, किरदार देखेंगे, तो आपका यह हाल है कि एक मुसलमान से आपने वादा किया कि जा मैं यहां पर बैठता हूं, उसने कहा मैं अभी आता हूं, आपने कहा जब तक तू नहीं आ जाएगा मैं इसी जगह पर बैठकर तेरा इंतजार कर रहा हूं। ज़ातुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 3 दिन तक अल्लाह के नबी उसी जगह पर बैठे रहे, खाना आपने वहीं खाया, नमाज आपने वहीं पढ़ी, पेशाब और पायखाने की जब जरूरत पड़ती थी तो आप किसी को कह जाते थे यहां पर बैठ जाओ, मैं पेशाब करने जाता हूं, मैं लैट्रीन जा रहा हूं। अगर कोई आदमी आए तो उससे कह देना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह क़ज़ाए हाजत के लिए गए, अभी आ रहे हैं। यानी आप सिर्फ पेशाब और पायखाना करने वहां गए, सोए वहीं, रहे वहीं, खाए वहीं, पिए वहीं, यहां तक कि नमाज भी आपने वहीं पढ़ी। 3 दिन के बाद वो आदमी आता है, कहता आका मैं तो अपना वादा भूल गया, मैं घर गया, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। तो इमाम कायनात का वादा देखो, आपने क्या फरमाया? तू अपना वादा भूल गया था, मोहम्मद अपना वादा नहीं भूला था, मैं अपना वादा नहीं भूला था। मैंने कहा जब तक तू यहाँ नहीं आ जाएगा मैं तेरा इंतजार इसी जगह पर बैठा हुआ करूंगा। अगर तेरी उम्र कयामत तक हो जाती और मेरी उम्र कयामत तक होती तो इला यौमिल क़यामा मोहम्मद को कयामत तक इसी जगह पर बैठा हुआ पाता। यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह का आइडियल मैनिफेस्टो। ओ लोगों, हमें इसकी जिंदगी को अपनाना है, हमें अपने अंदर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को पैदा करना है। कुरान क्या कहता है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए दुनिया वालों, हमने तुम्हारे लिए बीपी सिंह की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, हमने तुम्हारे लिए उबैदुल्ला खां आज़मी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, मुलायम सिंह की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, अटल बिहारी जी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, सोनिया गांधी जी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, ठाकुर जी की जिंदगी को आइडियल मॉडल नहीं बनाया। ये तो बेचारे खुद चोर हैं, इनकी जिंदगी को कौन मॉडल बनाए? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने तुम्हारे लिए उस इंसान को मॉडल बनाया कि जमीन के ऊपर आसमान के नीचे अभी किसी माँ ने ऐसा बेटा जना ही नहीं है। हमने तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल और मॉडल बना दिया है। अब ये मत देखो कि मंत्रियों के लोग के मंत्री अपनी बेटियों की शादी कैसे करता है, मुसलमान नेता अपनी लड़की की शादी कैसे करता है। ये मत देखो कि हमारे मोहल्ले का चौधरी और अमीर अपनी लड़की की शादी कैसे करता है, बल्कि ये देखो कि फातिमा के बाप हसन हुसैन के नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटियों का निकाह कैसे किया है, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को मॉडल बना दिया। जाहिर बात है, ईसाइयों से पूछो, यहां अगर हमारे ईसाई भाई हो तो जरा बताएं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी कैसे की और आपके यहाँ शादी का क्या तरीका है। क्या कहेंगे? नहीं मालूम। क्यों? ईसाइयों को मालूम ही नहीं कि ईसाई में शादी कैसे की जाए, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं की थी। और जिसने नबी ने शादी न की हो उसको ये कैसे मालूम कि हमारे यहाँ शादी कैसे हो? भाई गुरु नानक, सिख लोग जो हैं गुरु नानक की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो गुरु नानक ने जो किया है वही तो वो करेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जब शादी नहीं की है, सारे ईसाइयों चाहिए कि वो शादी ही ना करें। भाई जो नबी करता है वही तो करना चाहिए उनको। अब मैं क्रिश्चियन लाइब्रेरी के अंदर जब दिल्ली के अंदर गया, मुझे एक मजमून लिखना था कि ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम के अंदर, ये लिखना था। तो बाइबल का हवाला देखने की जरूरत पड़ गई। उस वक्त हमारे पास पैसों की किल्लत थी, नई किताब खरीद पाए थे बाइबल। तो मैं ईसाइयों की लाइब्रेरी में चला गया। तो ईसाइयों के यहाँ एक कानून है, क्या मालूम है? वो अपनी लड़कियों को आजाद कर देते हैं और ये कह देते हैं कि कोई भी लड़का अगर तुम्हारे पास आए तो उसको ईसाई बनाना। वो ये कहे कि अगर मैं ईसाई बन जाऊं तो तुम उससे शादी करोगी, तो कह देना हाँ और उससे शादी कर लेना। यानी ईसाइयों ने अपने धर्म को फैलाने के लिए लड़कियों को दांव पेच पे लगा दिया है। तो जब मैं लाइब्रेरी में गया तो उधर भी एक लड़की आई। क्या उसका जीन्स का पैंट था, बिल्कुल मर्द बनी हुई थी, इंदिरा गांधी कटबाल,
सोनिया गांधी तो इंदिरा गांधी की ये भी अम्मा निकली, कुछ नहीं कह सकते। वो आई, बोली व्हाट डू यू वांट। मैं उस वक्त इंग्लिश कहाँ पढ़ता था, मैंने कहा मैडम मैं बाइबल देखने आया हूं, मैं ये सब नहीं जानता वानता हूं जो आप पूछ रही हैं, व्हाट डू यू वांट। कहने कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैडम मैं बाइबल चाहता हूं, जरा देखना है। ले आई, ला के रख दिया मेरे सामने, मैं पन्ना पलटने लगा, देखने लगा। मैं इंजील देख रहा था। कहने लगी कि आपके मोहम्मद साहब का अखलाक कैरेक्टर मैंने पढ़ा है, तो लिखा है कि जो तुम्हें मारे तुम उसको मारो, जो तुम्हें कत्ल करे तुम उसको कत्ल करो, खून का बदला खून। तो हमने कहा क्या हुआ, कोई मेरे एक थप्पड़ मारेगा तो हम भी उतनी जोर से एक थप्पड़ मार लेंगे, बदला तो है ही। कहा कि ये तो बात ठीक है, बदला ले सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा अखलाक हमारे ईसा मसीह का था। हमने कहा क्या था। कहा कि ईसा मसीह ने कहा कि जो तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे उसको बायां गाल पेश कर दो, जो बाएं पे थप्पड़ मारे उसको फिर दायां गाल पेश कर दो। हमने कहा यानी पिटते रहो। उसने कहा नहीं नहीं, मतलब इतना अखलाक है दुश्मन के साथ कि अगर कोई गुस्से में एक थप्पड़ मारे तो उससे कहो प्यार से लो यहां पर भी मार लो। कितना अच्छा अखलाक है। हमने कहा जो दाएं गाल पे थप्पड़ मारे बायां गाल पेश कर दो, बाएं पे मारे फिर दायां पेश कर दो। बोली जी हाँ। हमने कहा इसका मतलब ये है कि कोई तुम्हारी एक बहन लेके भाग जाए दूसरी भी दे दो, तुम्हारे दो भाई हैं, एक भाई को कोई कत्ल कर दे दूसरा भी दे दो, तुम्हारे दो मकान हैं, एक पे डाकू कब्जा कर ले दूसरा भी दे दो, यही ना मतलब हुआ। कहने लगी आप बहुत ज्यादा बड़ बड़ के बात कर रहे हैं। हमने कहा मैडम बात आप कर रही हैं, हमारे यहाँ ये है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे बदला ले लो ताकि दोबारा किसी की गरीब पर फिर उसके हाथ उठाने की जरूरत ना हो सके। हमारे यहाँ ये वो फिलक़िसात हयात, बदला लेने में जिंदगी है, जिंदगी है। वो अपने बॉस के पास गई, बोली ओह ये आदमी ईसाई होने वाला नहीं है, ये तो हमें पढ़ा रहा है उल्टा। मैं वहां से चला आया तो ईसाइयों से पूछो कि तुम्हारे यहाँ शादी कैसे की जाती, वो कहेंगे हमें नहीं मालूम। तो ईसाइयों के पास सबूत ही नहीं कि शादी कैसे की जाए, तो ईसा की जिंदगी उनके लिए मॉडल नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही को मॉडल बनाना पड़ेगा। हमारे हिंदू भाइयों से पूछो कि शादी कैसे की जाए, तो वो क्या कहेंगे मालूम है, शादी करने का तरीका तो मालूम है लेकिन बीवी की रक्षा करने की जिम्मेदारी हिंदू धर्म नहीं लेता। हमने पूछा क्यों, कहने लगा शादी करने का तरीका है लेकिन बीवी की हिफाजत की जिम्मेदारी कैसे रखी जाए वो तरीका नहीं है। मैंने कहा क्यों। रामचंद्र जी ने शादी करने का तरीका बताया, बीवी को की हिफाजत करने का तरीका नहीं बताया। कहने लगे बीवी की हिफाजत करने का तरीका अगर उनको मालूम होता तो उनकी पत्नी सीता को रावण लेके नहीं भागता है। नहीं भाई बताओ ना, वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस के अंदर भी है। तो औरतों की कैसे हिफाजत की जाए, हिंदू धर्म के अंदर इसका तरीका नहीं। कैसे शादी की जाए ईसाइयों को इसका तरीका नहीं मालूम। और हमारी अदालत का भी क्या कहना। अदालत हिंदी से ले लो, हिंदी से इसमें 4 लफ्ज आते हैं, अरबी वाली अदालत मत लो। ये दुनिया की जो अदालतें हैं, कचहरियां जो है ना, ये अदालत है, अदालत अदालत नहीं है, ऐन से नहीं है, ये अलिफ से है, आ से। अदालत ये 4 लफ्ज आते हैं, अदालत। इसका मतलब जानते हो, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई। आ से आओ, दा से दावा करो, ला से लड़ो, ता से तबाह हो जाओ। यह है अदालत का मतलब। ये आज हमारे हिंदुस्तान की अदालत ने यह दिया, इस अदालत में आओ, दावा करो, लड़ो, तबाह हो जाओ। फैसला उस वक्त होता है जब अमीर लोगों की कोठरियां बिक जाती हैं, गरीब की अर्थी उठ जाती है, जनाजा निकल जाता है, तब यहां से फैसला होता है। यह मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत नहीं है मेरे भाइयों। यह अदालत यहां क्या है, किसी भी धर्म का कोई मानने वाला हो, लड़का लड़की राजी, कोर्ट मैरिज हो गई, अब कैसे रहा जाए, अदालत आपको लिख के नहीं देगी। ईसाई लड़की हिंदू लड़का दोनों में प्यार हो गया, बाप को गोली मारो, मां को गोली मारो, भाग जाओ, अदालत में चले जाओ, कोर्ट मैरिज हो गई। जिस बाप ने 18 साल तक उस लड़की को पाला हो, जवान किया हो, हमारी मौजूदा दौर की अदालत कहती है मां के अरमानों पर
छुरियां चलाते हुए, बाप के कुर्बानियों को ठुकराते हुए, जिस लड़के से तुम प्यार करती हो मेरे पास चली आओ। दुनिया की अदालत कहती है, हमारी कचहरी कहती है, हम तुम्हारा निकाह कराने के लिए तैयार हैं। गौर करो, अब कोर्ट मैरिज तो हो गई, अब चाहे लड़ो मरो कटो कुछ भी हो, अब अदालत नहीं जानती। आओ सबसे बड़ी अदालत में आते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि अगर किसी की बीवी बड़ी है तो वो कैसे अपनी बड़ी बीवी के साथ रहे, और किसी की बीवी छोटी है तो वो कैसे छोटी बीवी के साथ रहे। अल्लाह के नबी से पूछोगे, जवाब मिलेगा हदीस की किताबों में। ओ लोगों, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे बड़ी है तो वैसे तुम अपनी बड़ी बीवी के साथ रहो जैसे मैं हजरत खदीजा के साथ रहता हूँ। देखो मेरी उम्र 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल, तुम वैसे रहो जैसे मैं अपनी बीवी हजरत खदीजा के साथ रहता हूँ। और बेफर्ज अगर तुम्हारी बीवी तुमसे छोटी है तो ऐसे रहो जैसे मैं अपनी बीवी हजरत आयशा के साथ रहता हूँ कि मेरी उम्र 54 साल और मेरी बीवी आयशा की उम्र 9 साल। यानी तुम्हारी बीवी छोटी है, कैसे रहा जाए ये भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अदालत से सीखो, इस मदरसे से सीखो। तुम्हारी बीवी बड़ी है तो वो भी कैसे रहा जाए ये भी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो और फिर अंदाजा लगाओ कि इस्लाम तुम्हें क्या देता है, इस्लाम की शिक्षा क्या है। इस्लाम तुम्हारे ऊपर सूद को हराम करार देता है। इस्लाम ये कहता है कि तुम शादियां करो, और शादियों का मकसद क्या है? शादी का मतलब है कि तुम औलाद यानी जनसंख्या तादाद बढ़नी चाहिए। खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगो तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, तुमने ऐसी औरतों से शादियां करो जो ज्यादा बच्चे जनने वाली हों, क्योंकि कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत की अक्सरियत को देखकर फख्र करूंगा। कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत की तादाद को देखकर फख्र करूंगा। अब जरा गौर करो मेरे भाइयों, कुछ दिन पहले पेपरों में निकला और हमारी यूपी में असेंबली के अंदर राम प्रकाश गुप्ता, जिसने मस्जिद और मदरसों पर पाबंदी की बात की यूपी के अंदर कि मस्जिद और मदरसा डीएम की इजाजत से बनेगा, मस्जिदें नहीं बना सकते हो। अभी असेंबली में मीटिंग हुई थी लखनऊ के अंदर, मैं गया विधानसभा में, मैंने कहा कि ये बिल उस वक्त तक पास नहीं होगा जब तक कि सारे मुसलमान इस पर दस्तखत न कर दें, सारे मुसलमानों की जबान से ये मुस्तहकम फैसला ना हो जाए। बहुत देर बहस हुई, बहस में एक मसला छिड़ गया। सारे जो मेंबर थे, जो असेंबली के अंदर मेंबर थे लखनऊ के अंदर, वहीं पर एक बात चल गई कि मुसलमानों में ये 2-2, 3-3 जो शादियां की जाती हैं ये भी गलत है। सबके लिए एक कानून बनना चाहिए और सबको एक पत्नी रखने की इजाजत होनी चाहिए। हमने गलो अभी मस्जिद वाला मसला उठाया राम प्रकाश गुप्ता ने, और अभी शादी वाला मसला उठा रहा है। कह रहा है 2 शादी जो करे उसको सजा मिलनी चाहिए, जो 3 शादी करे उसको सजा मिलनी चाहिए। हमने कहा चलो तुम्हारे समान कानून को मैं मानता हूं, तुम कहते हो सबको एक एक पत्नी रखना चाहिए, लेकिन ये बताओ जिसके पास 2 बीवियां हो उसको सजा देने की बात कहते हो, जिसके पास 3 पत्नियां हो उसको सजा देने की बात करते हो, और जिसके पास एक भी बीवी न हो उसके लिए भी तो कोई सजा बनाओ। कहने लगा क्या मतलब? हमने कहा हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी बेचारे 72 साल के हो गए, कुंवारे हैं, अभी तक इनकी शादी नहीं हुई। अब ये बताइए कि जिसकी एक भी बीवी ना हो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? राम प्रकाश गुप्ता खड़े हो गए, यूपी का चीफ मिनिस्टर है मेरे भाइयों। कहने लगा मौलाना आप तो ऐसी ऐसी बात एक ना एक छोड़ देते हैं कि हम लोग तो मजबूर हो जाते हैं। भाई जो 2 बीवी रखे उसको आप सजा की बात कर रहे हो, मुसलमान 2-2, 3-3, 4-4 बीवियां रखेगा तो जितनी ज्यादा बीवी होंगी उतनी ज्यादा बच्चे होंगे, और जाहिर बात है जब बच्चे ज्यादा होंगे तो कोई फौजी बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई कमिश्नर बनेगा। यानी हमारे
बीवियों की तादाद ज्यादा हो तो ज्यादा बच्चे हो, तो ज्यादा बच्चे हो तो वो हिंदुस्तान की पुलिस बने, कमिश्नर बने, फौजी बने। यानी हम लोग ज्यादा बच्चे अगर करें तो वो हिंदुस्तान के काम में आए। हमारे अटल बिहारी जी ने अगर शादी की होती, शायद उनके नुत्फे से कोई बच्चा पैदा होता और वो हिंदुस्तान का फौजी बनता, कारगिल की लड़ाई में काम आता, पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ता। हमने अटल बिहारी जी ने शादी नहीं की, कितना बड़ा हिंदुस्तान का नुकसान कर दिया बेचारों ने। कम से कम उनको भी तो कोई सजा मिलनी चाहिए। एक कानून की बात करते हो, मुसलमानों के लिए सारे कानून चलाते हो बेचारे, सब कानून मुसलमानों के लिए। ये पार्लियामेंट का कानून, हमने कहा इस कानून की बात करते हो, हमने कहा ये बताओ, ये दरख्तों से ये आम का पेड़ है, इसमें 16 किलो आम लगता है, 20 किलो आम लगता है। हमारे हिंदुस्तान में आम की कमी है, पार्लियामेंट के नेता मिलकर कानून क्यों नहीं बना देते हैं, आम का पेड़ तो 20 किलो नहीं 50 किलो आम देगा ताकि विदेश से हमें आम ना लेना पड़े। क्यों नहीं कानून बनाते हो? हमारी भैंस 8 किलो दूध देती है, क्यों नहीं कानून बनाते हो? विदेश से दूध आता है, दूध की कमी चल रही है, भैंस तू 16 किलो दूध देना, 20 किलो दूध देना। जाहिर बात है, पता ये चला कि हमारे पार्लियामेंट के नेता भैंसों के लिए, दरख्तों के लिए, पेड़ों के लिए, खेतों के लिए कानून नहीं बना सकते हैं, सूरज और चांद के लिए कानून नहीं बना सकते हैं, पानी और बारिश जो आती है उसके लिए कानून नहीं बना सकते हैं, कितनी बारिश होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। तो इन तमाम चीजों पर किसका कानून चल रहा है? कोई तो होगा मेरे भाइयों। जो दरख्तों के लिए कानून बनाए हुए, जो सूरज के लिए कानून बनाए हुए, जो भैंसों के लिए कानून बनाए हुए हैं, जो खेतों के लिए कानून बनाए हुए, वो कौन सी जात है? पार्लियामेंट के नेता जवाब देते हैं वो जात अल्लाह की है, वो जात ईश्वर की है, उसी का कानून सब पर चलता है। तो जो सारी मखलूक पर कानून चलाता हो, वही जात इस लायक भी है कि वो इंसानों पर भी अपना कानून चलाए। जो सारी मखलूक के लिए कानून बनाता हो और इंसान के लिए कानून न बनाया हो उसने, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने इंसानों के लिए भी कानून बनाया है, और इंसानों के लिए वो कानून कौन है? वो कानून है कुरान करीम। और मेरे भाइयों, इस कुरान को हमें और आपको नाफिज करना होगा। इस कुरान की पवित्र शिक्षा हमें अटल बिहारी जी को भी देना पड़ेगी और बाल ठाकुरे जी को भी देना पड़ेगी, बड़े प्यार से। और हमारा क्या कहना, हमारा नसीब बहुत अच्छा है। हमारी तकरीरों में, शहरों में स्पेशल सीआईडी भी भेजी जाती है। मौलाना जर्जीज की तकरीर हो रही, जाओ, सीआईडी वाले बेचारे वो छोटा वाला टेप लेके आते हैं जिसमें बिल्कुल छोटी सी कबूतर के अंडे के बराबर कैसेट होती है। इतनी सी कैसेट में टेप करके अटल बिहारी जी को सुनाते हैं, बाल ठाकुरे जी को सुनाते हैं। बाल ठाकुरे ने एक मरतबा मुझे बुलाया, आपने तो सुना ही होगा। क्या बताऊं, शुरू में तो मुझे डर लगा, या अल्लाह, कहीं बड़े धड़ल्ले से बोल रहा था बांद्रा के चौराहे पर। लोग समझता है कि मुसलमान, कौन बोलेगा हमारे खिलाफ? बोला मैं हरे रंग पे पाबंदी लगाऊंगा, हरी झंडियां दिखाई जाती हैं, मैं हरे रंग पे पाबंदी लगाऊंगा, दादर स्टेशन को लाल रंग से रंगूंगा, मैं हरे रंग का अर्थी निकालूंगा, जनाजा निकालूंगा।